Hello students, today we are going to take a chapter in contemporary history, chapter 12, the Second World War. The syllabus for this year as revised by the board is the Second World War causes, dissatisfaction with the Treaty of Versailles, rise of fascism and Nazism, policy of appeasement, Japanese invasion of China, failure of League of Nations, and Hitler's invasion of Poland, and the remaining has been omitted. Brief mention of the attack of Pearl Harbor, bombing of Hiroshima Nagasaki, and consequences, defeat of Axis powers, formation of the United Nations, and Cold War has been excluded from this chapter. Perhaps the United Nations and Cold War would be taken in the next chapter. So right now we will study as per the syllabus given to us, that is the Second World War, dissatisfaction with the Treaty of Versailles, and the remaining things. The First World War and its harsh peace treaties sowed the seeds for the Second World War. This war was not a continuation of the First World War, and the similarity in causes and characteristics are more than superficial. The damage caused by the Second World War surpassed all other wars and brought the world to the brink of complete destruction. Causes of World War II. Although invasion of Poland by Germany was the immediate cause for the outbreak of the Second World War, the real causes for the outbreak of the war were much deeper and varied in character. They included the following: dissatisfaction with the Treaty of Versailles. The Treaty of Versailles, by which the First World War came to an end, created more problems than it solved. The treaty demanded annexation of German territories, and creation of many states. This sowed the seeds of bitterness and conflict. In fact, this treaty was based on the spirit of revenge, and Germany was forced to sign the treaty. All the German colonies were forcibly taken away from her, and she was divided into two parts for the benefit of Poland. She was burdened with huge war indemnity which she could never pay. Her military power was reduced. This humiliation gave rise to the spirit of revenge, and Germany started looking for an opportunity to do away with the harsh treaty. But this was not possible without an aggressive policy and armaments. Hence, the war became inevitable. वैसे तो बोलने के लिए इन्वेजन ऑफ पोलैंड बाय जर्मनी ने जब पोलैंड को इन्वेड किया, हम इसे द इमीडिएट कॉज फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये मान के चलते हैं, लेकिन ये तो आखिरी सिरा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कई कारण थे, बहुत सारे कारण थे, जिनमें से इन्वेजन ऑफ पोलैंड एक था। तो ऐसे कौन कौन से कारण थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले गए? देखो, अभी 1913 से लेकर 1919 तक का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, और ये एक बहुत पास्ट की बात नहीं है, बहुत ही भूतकाल की बात नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में जब जर्मनी की आर्मी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था,
तो यहाँ से हम मानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए लड़ा गया था कि सभी वॉर का अंत हो जाए। इस महायुद्ध का मेन मकसद था, ख़ास मकसद ये था कि इसके बाद कोई बड़ा युद्ध ना हो। लेकिन देखो 1939 में एक और एक महायुद्ध, इतना बड़ा महायुद्ध कि इसमें जितना डिस्ट्रक्शन हुआ इससे पहले कोई वॉर में इतना डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे प्रमुख और सबसे पहला कारण है डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जर्मनी के ऊपर जो ये ट्रीटी थोपी गई थी, इससे जर्मनी बेहद नाखुश थी, बिल्कुल खुश नहीं थी, बहुत नाराज़ थी, क्योंकि ये ट्रीटी तो समस्या पे समस्या खड़ा करते गई, इसने कोई हल नहीं निकाला। ट्रीटी पीस ट्रीटी थी, ये माना था कि शायद ऐसे पीस ट्रीटी बनाने से दोबारा महायुद्ध नहीं होगा, लेकिन ये सॉल्व करने के बजाय और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स खड़े करते गई। इस ट्रीटी में ऐसा क्या था जो ये समस्याओं पे समस्या खड़े करते जा रही थी? इस ट्रीटी में जो जर्मन की जो टेरिटरीज़ थी उसको एनेक्स कर लिया गया, उससे जर्मनी से छीन लिया गया और इस टेरिटरीज़ के नए नए स्टेट्स या नए नए कंट्रीज़ बनाए गए। तो इसकी वजह क्या हो गई? अगर आप किसी भी देश से उसका हिस्सा छीनोगे तो उनके दिल और दिमाग में नफ़रत के बीज आप बोओगे। तो वैसे ही जर्मनी से उनके टेरिटरी छीन कर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने इनफैक्ट नफ़रत के बीज बो दिए थे। एक्चुअली में ट्रीटी जो बनाई गई थी ये अलाइड पावर्स की एक्सेस पावर की तरफ नफ़रत थी। जो यूएसए, फ्रांस और इंग्लैंड ये जर्मनी से बहुत नफ़रत करते थे और उन्होंने अपना पूरा नफ़रत इस ट्रीटी पर उतार दिया और जर्मनी को वॉर का दोषी ठहराकर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वॉर का जुर्माना थोप दिया। जितनी भी जर्मन कॉलोनीज़ थी, जर्मनी ने जितने भी इलाकों पे कब्जा किया था एशिया में, अफ्रीका में, वह जर्मनी से छीन कर ये अलाइड पावर्स को सौंप दिया गया। जर्मनी को खुद दो बड़े हिस्सों में बांट दिया गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ये इसलिए किया गया था कि इसका बेनिफिट जो है पोलैंड को मिले। और जर्मनी के ऊपर इतना बड़ा वॉर जुर्माना, वॉर इंडिमनिटी थोपा गया जिससे जर्मनी चाहकर भी पूरा नहीं कर पाता था, चाहकर भी पे नहीं कर पाता था। तो किसी भी देश का अगर आप ऐसा अपमान करोगे तो वाजिब है कि वह देश बदला लेने की ठान लेगा, और वैसा ही वह देश बदला लेने की ठान लिया। तो बदला कब ले सकता है? बदला तब लेगा जब वह अपने आप को ताकतवर बनाएगा। और अपने आप को ताकतवर कैसा बना सकता है? बाय आर्मामेंट, यानी अपने आप को आर्मी से या अपने बड़े बड़े हथियारों से, आधुनिक हथियारों से अपने आप को लैस ले, अपने आप को तैयार कर दे। तो एक बार जर्मनी ने बड़े बड़े हथियार बनाना चालू कर दिया फैक्ट्रीज़ में। जो फैक्ट्रीज़ थी, जो इंडस्ट्रीज़ थी, वह जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो बनाते थे वह डोमेस्टिक यूज़ के लिए ना बनाते हुए वह अब मिलिट्री पर्पसेस के लिए फैक्ट्रीज़ की तरफ कंसंट्रेशन करने लग गए और बड़े बड़े आधुनिक हथियार बनाने लग गए। तो अब हो गई तैयारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। जर्मनी ने अपने आप को वापस से शक्तिशाली बना लिया, ताकतवर बना लिया, और वह इस प्रकार से तैयार हो चुका था कि वह किसी को भी या किसी का भी सामना कर सकता था। दूसरा बड़ा कारण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दूसरा बड़ा कारण है राइज ऑफ फेसिज्म एंड नाजिज्म। जर्मनी में नाजिज्म और इटली में फेसिज्म। द राइज ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म इन इटली एंड जर्मनी in the form of fascism and Nazism respectively contributed to the causes which led to the Second World War. Italy wanted to revive the glory of the old Roman Empire. She joined the Anti-Comintern Pact in 1937 and formed a 10-year alliance with Germany.
In 1939, to strengthen her position, Mussolini established dictatorship in Italy. He opposed the Treaty of Versailles. Italy demonstrated her imperialistic designs by attacking Abyssinia. The League of Nations failed to take any action against Italy, which exhibited the weakness of the League. In Germany, Hitler wanted to re-establish the prestige of Germany, and in the international field, he flouted the military clauses in the Treaty of Versailles and declared rearmament. In 1938, he annexed Australia and dismembered Czechoslovakia. Thus, Mussolini and Hitler drove the countries of the world towards another world war. ये फेसिज्म और नाजिज्म क्या होते हैं? ये एक प्रकार की सरकार होती है जहाँ पर किसी एक मनुष्य के हाथ में, किसी एक लीडर के हाथ में सारी सत्ता सौंप दी जाती है, सारी ताकत सौंप दी जाती है, सारे अधिकार उन्हें दे दिए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने देश से बेहद प्यार करते हैं। अपने देश से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरे देशों से नफ़रत करना ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो फेसिज्म और नाजिज्म ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म थे। ये बहुत ही ऊंची कोटि के यानी ऊंची सिरे के देशभक्ति थी, जो चाहते थे कि बस हमारा ही देश सबसे आगे हो और बाकी देश का अगर नुकसान होता है तो होने दो। इस प्रकार के नेचर रखने, इस प्रकार के ख्याल रखने वाले होते हैं फेसिस्ट या नाजिस्ट। तो जो इटली में और जर्मनी में इस प्रकार की सरकार उस ज़माने में इस प्रकार की सरकार तैयार हो गई थी। ऐसी ही भावनाओं के खातिर या ऐसी ही भावनाओं के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ पहले कदम चलने लगे। इटली चाहता था कि वह जो एक ज़माने में जो रोम का दबदबा था पूरे वर्ल्ड के ऊपर, वैसा ही इटली का वापस से राज्य आ जाए, वैसा ही शासनकाल आ जाए कि ताकि वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना दबदबा कर सके या अपना राज्य बिछा सके। तो इसके लिए इटली ने एक डील किया जर्मनी के साथ में। जर्मनी और जापान और इटली ने मिलकर एक डील बनाए। इसे कहते हैं एंटी कॉमिंटन पैक्ट। ये एंटी कॉमिंटन पैक्ट 1937 में साइन किया गया था जर्मनी और उसके अलायंस के साथ में। और इस पैक्ट के अनुसार ये कंट्रीज़ जो है, जो भी इस पैक्ट में सहपाठी होगा, सहभागी होगा, वह आपस में एक दूसरे से कम आने वाले 10 साल युद्ध नहीं करेंगे। वह एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ में खड़े रहेंगे उनके मुसीबत में, उनके कठिन घड़ियों में। तो इस प्रकार से इटली में मुसोलिनी ने एक प्रकार का डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट तैयार कर लिया था। वहाँ पर वो डिक्टेटर बन गया था। उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को अपोज़ किया क्योंकि वो तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से काफ़ी नाराज़ था। उसकी नाराज़गी हम जानते हैं क्यों थी, क्योंकि जब उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस, यूएसए और इंग्लैंड का साथ दिया था, उसे उम्मीद थी कि जर्मनी के टेरिटरीज़ में से कुछ बड़ा हिस्सा इटली को मिलेगा, लेकिन इटली को केवल 2 छोटे छोटे आइलैंड्स दे दिए गए थे एड्रियाटिक सी में। हाँ, और जिसकी वजह से इटली काफ़ी नाराज़ था। तो उसने मौका मिलते ही उसने जर्मनी के साथ में और जापान के साथ में दोस्ती कर ली और एंटी कॉमिंटन पैक्ट जो है उसको साइन कर लिया। इटली के इरादे नेक नहीं थे। इसका हमें इसका सबूत तब मिलता है जब इटली ने एबेसिनिया के ऊपर अटैक कर दिया था। एबेसिनिया के ऊपर अटैक करके कि ताकि वहाँ उस इलाके में वो रूल करेगा, तो इससे उसके इम्पीरियलिस्टिक आइडियोलॉजीज़ जो थे वह जाहिर होते थे, वो दिखाई पड़ते थे। लीग ऑफ नेशन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई रिएक्शन नहीं लिया। लीग ऑफ नेशन रिएक्शन लेता भी कैसे? उसके पास अपनी खुद की आर्मी नहीं थी। यूएसए जो एक बहुत पावरफुल देश बनकर उभरा था, बहुत पावरफुल पावर बन के उभरा था, वो लीग ऑफ नेशन का हिस्सा ही नहीं था। रशिया को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो इंग्लैंड और फ्रांस
क्या करते, जर्मनी भी लीग ऑफ नेशन से निकल गया, जापान भी लीग ऑफ नेशन से निकल गया। तो लीग ऑफ नेशन ने इटली के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की और कार्रवाई कर नहीं पाए, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन की जो कमजोरी थी वो उजागर हो गई। लोगों को समझ में आया कि लीग ऑफ नेशन केवल दिखावे का दांत है। हाथी के दांत दिखावे के अलग होते हैं ना, खाने के अलग होते हैं, वैसा लीग ऑफ नेशन केवल एक दिखावे की चीज़ है, इसमें कोई ताकत नहीं है। जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। हिटलर चाहते थे कि वो अपना जो पुराना जो प्रेस्टीज है, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले का जो प्रेस्टीज था उसे वापस लेकर आ जाए, अपने देश का गौरव वापस वो स्थापित कर ले। तो हिटलर ने भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को फ्लॉट करना चालू कर दिया, उसको तोड़ना चालू कर दिया। खास करके इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ थी, जो इंटरनेशनल पॉइंट्स को लेकर उसने जो जर्मनी ने जो साइन किया था, वह सब वो नकारने लगा, उसको तोड़ने लगा। जर्मनी ने अपने आप को हथियारों से लैस कर लिया और 1938 में उसने ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला करके ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे में ले लिया और चेकोस्लोवाकिया को भी उसने डिसमेंबर कर लिया। चेकोस्लोवाकिया पे भी उसने अपना कब्जा जमा लिया। इस प्रकार से मुसोलिनी और हिटलर ये दो ऐसे नेता थे जिन्होंने वर्ल्ड को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेलना चालू कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तीसरा कारण है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अपीजमेंट मतलब हिटलर को खुश करने की कोशिश। अपीजमेंट रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ conciliating an aggressive power at the expense of some other country. It meant accepting the hostile demands of an aggressive nation to gain peace. अपीजमेंट का मतलब क्या है कि देखो, जैसा जर्मनी एक बहुत ही एग्रेसिव कंट्री बन गया था और वो पोलैंड के ऊपर, हॉलैंड के ऊपर, चेकोस्लोवाकिया के ऊपर को हमला कर रहा था, तो इससे पहले भी जब हिटलर ने राइन वैली पे वापस से कब्ज़ा कर लिया, तो कोई भी वर्ल्ड लीडर आकर हिटलर के सामने या हिटलर को चैलेंज नहीं किया, उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उनका कहना था, उनका मानना था कि जर्मनी के साथ में बहुत बुरा हुआ है, तो हिटलर जो करता है उसको करने दो, बाद में खुद शांत हो जाएगा, खुद ठंडा हो जाएगा, उसकी पब्लिसिटी जब कम हो जाएगी तो सब हालात ठीक हो जाएंगे। तो यानी क्योंकि हिटलर अभी ताकतवर बन गया था, तो फ्रांस और इंग्लैंड दोबारा इस वॉर में खुदना नहीं चाहते थे, क्योंकि अब वह पहले जैसे कंट्रीज़ नहीं रहे, वह खुद यूएसए के कर्जे में दबे हुए थे। यूएसए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, इसलिए जो हिटलर कर रहा था वो हिटलर को करने दे रहा था। ऐसे सिचुएशन को पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहते हैं। इट मेंट एक्सेप्टिंग द हॉस्टिलिटीज़ और द हॉस्टाइल डिमांड्स ऑफ एन एग्रेसिव नेशन टू गेन पीस। ब्रिटेन एंड फ्रांस followed the policy of appeasement towards dictator countries like Germany and Italy because they felt that the dictators had a real cause of grievance due to the humiliating terms of the Treaty of Versailles, and if the grievances were removed they would not disturb world peace. तो फ्रांस और इंग्लैंड का मानना था कि अगर ये तो डिक्टेटर जो है हिटलर और मुसोलिनी, ये किस वजह से नाराज़ है, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से नाराज़ है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में इनके साथ में ठीक से बर्ताव नहीं किया गया और इन्हें लगा कि एक बार ये अपना गुस्सा बयां करने के बाद में ये शांत हो जाएंगे तो दुनिया में वापस से शांति आ जाएगी और एक महायुद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या वह सही थे? नहीं। फर्दर दे वांटेड टू चेक द राइजिंग टाइड ऑफ कम्युनिज्म एंड रशिया बोल्शेविज्म। तो ना केवल एक तरफ हिटलर और मुसोलिनी ये फेसिज्म और नाजिज्म फैला रहे थे और उसी समय पर रशिया में एक बोल्शेविक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट आ रही थी जो कि सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है। ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल ऑपोजिट है, डेमोक्रेसी को चैलेंज करने वाली सरकार है। तो उस ज़माने में पूरे जो वर्ल्ड जो था वो प्रो डेमोक्रेसी चाहता था, वो चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट आ जाए। लेकिन यहाँ पर बोल्शेविज्म जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा रशिया में और सोशलिज़म बहुत तेज़ी से फैलने लगा। तो ये इस बात को लेकर परेशान थे कि किस प्रकार से रशिया को काउंटर किया जाए, किस प्रकार से रशिया को रोका जाए। वो जर्मनी पे और इटली पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, वो रशिया को काउंटर करने के चक्कर में इतना डिले कर गए जिससे हिटलर की और हिम्मत बढ़ गई।
They therefore allowed Germany to rearm and remilitarize the Rhineland and capture Austria and Czechoslovakia. So, without the Western countries' policy of appeasement, fascism or Nazism could not have survived so long and would not have been able to unleash the Second World War. तो अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ पहले ही दौर पर फेसिज्म और नाजिज्म को चेक कर लेते तो ये नौबत नहीं आती, ये नौबत सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली नौबत ही नहीं आती। लेकिन उन्होंने हालात को टालते गए जिसकी वजह से हिटलर और मुसोलिनी बहुत ताकतवर बन गए। हिटलर ने अपने आप को रीआर्म कर दिया, राइन वैली को वापस से मिलिटराइज कर दिया और अपनी ताकत बहुत बुलंद कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का चौथा कारण, जापानीज़ इन्वेजन ऑफ चाइना। जापानीज़ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन was another cause of the war. Japan's ambition rose after the First World War. She was determined to dominate the Far East. In 1931, Japan intervened in Manchuria and, in spite of the League's opposition, occupied it and set up a government there. Japan also started an undeclared war against China in 1931. China appealed to the League of Nations to declare sanctions against Japan. Britain and France, the leading members of the League, did not pay any attention to the appeal. Japan joined the Berlin-Rome Axis to form the Berlin-Rome-Tokyo Axis to further its policy of expansion and conquest. In 1933, Japan left the League of Nations and started occupying the British and American properties in China. Britain and France followed the policy of appeasement, thinking that the Japanese could be used to weaken China. Thus, a war was inevitable under these circumstances. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक मेन कारण, चौथा जो मुख्य कारण है वह है जापानीज़ इन्वेजन ऑफ चाइना। जापान ने चाइना के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसका मकसद था कि वह अपना इलाका बढ़ाता जाए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में उसे अपनी ताकत का अंदाज़ हो गया था कि वह काफ़ी ताकतवर देश है, वह बड़े बड़े देशों को चुनौती दे सकता है। तो उसके मन में लालच सा आ गया। जापान जो है वो ईस्ट, अगर हम जो मैप है उसको टेबल पे स्प्रेड करेंगे तो जो ईस्ट कंट्री है वो जापान है। तो जापान पूरा ईस्ट का जो इलाका है वहाँ पर वो अपना डोमिनेशन दिखाना चाह रहा था। तो इस प्रकार से उसने मंचूरिया के ऊपर, चाइना के ऊपर उसने अटैक कर दिया। डिक्लेयर नहीं किया, वॉर डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वहाँ पर उसने अटैक कर दिया। तो चाइना ने क्या किया, लीग ऑफ नेशन से मदद मांगी, क्योंकि चाइना लीग ऑफ नेशन का एक मेंबर था। उसने लीग ऑफ नेशन से मदद मांगी, लेकिन लीग ऑफ नेशन ने या फ्रांस और इंग्लैंड ने, जो लीग ऑफ नेशन के मेन मेंबर थे, उन्होंने अपनी आंखें और अपने कान बंद कर लिए। वो चाइना की मदद पे नहीं उतरे। उनका मकसद क्या था, अगर जापान और चाइना आपस में लड़ेंगे तो ये दो ताकत अपने आप कमज़ोर हो जाएगी। तो वो जानबूझकर वो चाइना के मदद के लिए नहीं उतरे। इस दौरान जापान ने क्या किया, उसने जर्मनी के साथ में और इटली के साथ में हाथ मिला लिया। तो जो रोम बर्लिन एक्सेस था, अब वो रोम बर्लिन टोक्यो एक्सेस बन गया। यानी बर्लिन, रोम और टोक्यो आपस में ट्रेड रिलेशंस करने लगे। और फिर जापान ने लीग ऑफ नेशन से रिज़ाइन कर दिया, लीग ऑफ नेशन से बाहर निकल गया और उसने फिर अटैक करना चालू किया। जो ब्रिटिश की जो प्रॉपर्टीज़ थी, फ्रांस की जो प्रॉपर्टी थी चाइना में, उसके ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना चालू कर दिया। फिर भी ब्रिटेन और फ्रांस ने फिर भी यहाँ पर वॉर में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जापान को रोकने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनको लगा कि जापान अगर यहाँ पर लड़ाई करता है तो अच्छा है, चाइना कमज़ोर हो जाएगा। तो चाइना के कमज़ोर होने के चक्कर के इसमें इन्होंने जापान को भी ये इम्पोर्टेंस दे दिया, जापान को भी बढ़ावा दे दिया। तो जापान वॉर करने लगा। इटली के मन में वॉर था, इटली ने भी कुछ टेरिटरीज़ पे ऑक्यूपाई कर लिया। फिर जर्मनी ने कुछ टेरिटरीज़ पे कब्जा कर लिया। तो ये तो वॉर की सिचुएशन ऑलरेडी खड़ी हो चुकी थी, वॉर तो होना ही था। फिर दूसरा महायुद्ध का पांचवा कारण था फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन।
लीग ऑफ नेशन जो किस मकसद से बना था? लीग ऑफ नेशन इस मकसद से बना था कि दोबारा एक ऐसा महायुद्ध ना हो जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में लीग ऑफ नेशंस का भी पॉइंट इंक्लूड किया गया था और यूएस प्रेसिडेंट के 14 पॉइंट प्रोग्राम के ऊपर आधारित ही लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, लेकिन लीग ऑफ नेशंस का मेंबर यूएसए नहीं बन पाया या वो नहीं बना। The League of Nations was created after the First World War to prevent further wars. However, the League suffered an early blow when the USA did not join the League. Even those who joined the League were not interested in the principle of collective security. तो लीग ऑफ नेशन को जब सबसे पहला झटका बैठा वो था यूएसए, जिसने प्रपोज किया कि हमने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। वह खुद ही इसमें मेंबर नहीं बना। तो यूएसए एक बहुत बड़ी ताकत थी। अगर यूएसए होता तो शायद लीग ऑफ नेशन जो है एक ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन होता और वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट कर सकता था। तो लीग ऑफ नेशन में यूएस ने भी हिस्सा नहीं लिया और जो मेंबर्स इसमें जो देश इसमें मेंबर्स भी थे उनका मेन जो इरादा था कि लीग ऑफ नेशन एक ऐसी संस्था बन जाए जो वर्ल्ड पीस का, दुनिया का भला सोचे, इस पे पर वो खरे नहीं उतरे। उनका जो इरादा था वो बिल्कुल वर्ल्ड की प्रॉस्पेरिटी के ऊपर नहीं था। वर्ल्ड शांति से उनको कुछ लेना देना नहीं था। द लीग ऑफ नेशंस सक्सीडेड इन अलाइंग द थ्रेट ऑफ वॉर इन केस वेयर द पार्टीज वर स्मॉल नेशंस। द लीग डिड नथिंग व्हेन पोलैंड with the backing of France seized a part of Lithuania in 1920। तो लीग ऑफ नेशंस ने क्या किया? लीग ऑफ नेशंस किसके ऊपर अपना रोप जमाता था? छोटे मोटे देश के ऊपर। लेकिन जिस ऐसे कोई बड़े पावरफुल देश थे फ्रांस के जैसा, तो फ्रांस ने और पोलैंड की मदद की थी लिथुआनिया के ऊपर हमला बोलने के लिए। तो यहाँ पर लीग ऑफ नेशन ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई, फ्रांस को उसने नहीं रोका। In 1923, there was a threat of war between Italy and Greece. Italy refused to submit to the League of Nations intervention, and the dispute was settled by direct mediation of Great Britain and France. Thereafter, every crisis, the League was either defied or ignored. तो इटली और ग्रीस के बीच में जब लड़ाई होने वाली थी तो ग्रीस ने लीग ऑफ नेशन से मदद मांगी। लीग ऑफ नेशन ने इटली को समझाने की कोशिश की तो इटली ने लीग ऑफ नेशन की एक बात नहीं सुनी। लीग ऑफ नेशन को इटली ने नकार दिया। तो फ्रांस ने और ग्रेट ब्रिटेन ने मिलकर इटली को समझाया। तो ये डायरेक्ट नेगोशिएशन के द्वारा ही जो वॉर था ग्रीस और इटली के बीच में वो रुक गया। तो इसके बाद क्या हो गया कि या तो फिर लीग ऑफ नेशंस को लोग अनदेखा कर देते थे या वो डायरेक्टली अपने आपस में ही नेगोशिएट कर लेते थे। द अथॉरिटी ऑफ द लीग वॉज फ्लाउटेड बाय जापान व्हेन इट सीज्ड मैंचूरिया एंड बाय इटली व्हेन इट कॉन्कर्ड इथोपिया। तो जापान ने भी लीग ऑफ नेशंस को अधिकार को अनदेखा कर दिया। उसने मंचूरिया पे कब्जा जमा लिया और इटली ने भी इथोपिया पे कब्जा जमा लिया। इजिप्ट की तरफ इथोपिया था उसके ऊपर उसने अपना कब्जा जमा लिया। इस प्रकार से लीग ऑफ नेशंस केवल एक पुतला बनकर रह गया। वो सिर्फ जो चल रहा था वो देख पा रहा था लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा था। लीग इतना कमज़ोर क्यों था? लीग का कमज़ोर होने का कारण क्या था? क्योंकि लीग के पास में अपनी खुद की कोई मिलिट्री नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी। द कोहेसिव मशीनरी of the League was not adequate to perform the task given to it. The economic sanctions were of no use against a determined aggressor. Moreover, the member states were not willing to apply economic sanctions as it affected their economy as well. Besides, the League failed to maintain international peace and the countries of Europe lost faith in the usefulness of the League of Nations. Thereafter, they themselves entered into mutual political and military alliances. तो लीग के पास में ऐसी कोई ताकत थी ही नहीं जो वह विश्व शांति की बात कर सके। ऊपर से यहाँ के जो मेंबर स्टेट्स थे वह भी बड़े सेल्फिश थे, वही बड़े लालची थे। वह एग्रेसर नेशन के ऊपर कोई
इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगाना चाहते थे। अगर वो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते, इकोनॉमिक सैंक्शन मतलब व्यापार, जो बिज़नेस का जो ट्रेड होता है वो उसके ऊपर कोई सैंक्शन मतलब कोई रोक टोक लगाना। अगर ये व्यापार के ऊपर रोक टोक लगाते तो इनका भी काफ़ी नुकसान होता, इनका मुनाफा नहीं होता। इसलिए वह ऐसे देश के ऊपर रोक टोक नहीं लगाना चाह रहे थे जो कि एग्रेसर थे, जो कि आक्रामक थे। तो जब यूरोप में छोटे मोटे वॉर्स होना चालू कर दिए तो यूरोप के जो देश थे उसको लीग के ऊपर से भरोसा उठ गया। तो ये क्या करने लगे, फिर आपस में ही मेल झोल करने, तालमेल करने लगे और सीक्रेट अलायंसेस बनाने लगे। वापस से वही ग्रुप बाजी चालू हो गई, मिलिट्री अलायंसेस करना चालू कर दिए। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे आखिरी कारण था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, वो था हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। We can say that this was the immediate cause of the Second World War. Hitler invaded Poland in September 1939 for the following reasons. By the Treaty of Versailles, Germany was divided into two parts in order to give a land route to Poland up to the sea, and the port of Danzig, which was also given to Poland. Germany wanted to regain her lost territories. तो लीग ऑफ नेशन ने क्या किया था, बहुत चालाकी से जर्मनी को डिवाइड तो कर ही दिया था, जर्मनी को तो तोड़ दिया था उसने, और जर्मनी के से उस टुकड़ा बनाकर एक नया देश बनाया, पोलैंड। पोलैंड एक ऐसा देश था जिसके पास में सी पोर्ट नहीं था, तो डैंजिंग सी पोर्ट जो जर्मनी का सी पोर्ट था उन्होंने पोलैंड को दे दिया। लेकिन पोलैंड इस सी पोर्ट से बहुत दूर था, तो पोलैंड सी पोर्ट तक कैसे पहुंचेगा, तो उन्होंने जर्मनी को डिवाइड कर दिया, जर्मनी को ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड कर दिया कि ताकि पोलैंड को यहाँ से ईजिली रोड रूट मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए सी रूट तक का पहुँचने का, और डैंजिंग पोर्ट को इंटरनेशनल पोर्ट घोषित कर दिया। द सिटी ऑफ डैंजिंग वॉज इनहेबिटेड मेनली बाय द जर्मन्स, एंड बाय ऑक्यूपाइंग डैंजिंग कॉरिडोर जर्मनी कुड कनेक्ट विथ ईस्ट प्रूशिया। तो डैंजिंग एक ऐसा शहर था जिसमें जर्मन नागरिक अधिकतर रहते थे, और अगर जर्मनी डैंजिंग के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा ले तो वो ईस्ट प्रूशिया के साथ में अपने संबंध और मजबूत कर सकता है, या ईस्ट प्रूशिया के ऊपर अपनी पहचान रख सकता है। जर्मनी साइंड अ नॉन एग्रेशन पैक्ट विथ रशिया इन अगस्त 1939। पोलैंड वॉज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट जर्मन्स लिविंग देयर। तो हिटलर ने एक और एक चाल चली, उसके बड़े बड़े दुश्मनों के साथ में उसने दोस्ती कर ली। पहले उसने फ्रांस और इंग्लैंड के साथ में द जेंटलमैन्स पैक्ट कर लिया था। इसके बाद में उसने रशिया के साथ में भी एक ऐसी ही पैक्ट किया 1939 में। उसके साथ में ये पैक्ट किया कि आने वाले 4 साल में हम एक दूसरे के साथ में युद्ध नहीं करेंगे। और उसने पोलैंड के ऊपर आरोप लगाया कि पोलैंड ने जो जर्मन नागरिक है उसके ऊपर वो अत्याचार कर रहे हैं, जर्मन नागरिकों के साथ में वो ठीक से नहीं बर्ताव कर रहे, और इस बहाने उसने पोलैंड के ऊपर हमला बोलने की तैयारी कर ली। ऑन September 1, 1939, द जर्मन आर्मीज मार्च इनटू पोलैंड। फ्रांस एंड ब्रिटेन गेव एन अल्टीमेटम टू जर्मनी। इन रिप्लाई, जर्मनी अटैक्ड फ्रांस। ऑन September 3, Britain and France declared war on Germany. Thus, the invasion of Poland marked the beginning of the Second World War. The German armies occupied the conquest of Poland in less than 3 weeks, so as to ensure that no aid reached Poland. तो 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला बोल दिया। जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला बोल दिया तब जाके फ्रांस और इंग्लैंड की आंखें खुल गई, क्योंकि लगा अब अगली बारी तो अपनी है। तो उन्होंने जर्मनी को एक अल्टीमेटम दे दिया, एक वार्निंग दी। जब फ्रांस ने जर्मनी को वार्निंग दी तो फ्रांस इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। उसने देखो बड़े बड़े देशों के साथ में दोस्ती कर ली थी, रशिया के साथ में दोस्ती कर ली थी, इंग्लैंड के साथ में दोस्ती कर ली थी कि ताकि वो फ्रांस के ऊपर हमला बोले। तो उसने फ्रांस के ऊपर हमला बोल दिया। फिर ये कब हुआ, सितंबर 3 को, और ब्रिटेन और फ्रांस ने फिर जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर लिया। लेकिन 3 हफ्ते के अंदर अंदर जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अपना पूरा कब्ज़ा जमा लिया, क्योंकि वो चाहता था कि जल्द से जल्द पोलैंड के ऊपर वो कब्ज़ा जमा ले कि ताकि फ्रांस और इंग्लैंड उसका कुछ ना बिगाड़े। इन स्पाइट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर देयर वाज लिटिल एक्चुअल फाइटिंग फॉर मैनी मंथ्स।
Therefore, the war during this period from September 1939 to April 1940 was dormant. हालांकि इंग्लैंड ने और फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर वॉर घोषित तो कर दिया, लेकिन वो एक्चुअल में उनके साथ में लड़ाई नहीं कर रहे थे। तो ये जो दौर था सितंबर 1939 से लेकर अप्रैल 1940 तक का, ये एक डॉर्मेंट दौर था। बोलने के लिए वॉर था लेकिन युद्ध नहीं हो रहे थे। इस प्रकार से जर्मनी को तो और उसका और उत्साह बढ़ गया और वो और फॉर्म में आ गया। फिर स्प्रेड ऑफ द वॉर, वन कंट्री आफ्टर अनदर इन यूरोप गॉट इन्वॉल्व इन द वॉर until at last the only countries which were remained neutral were Sweden, Switzerland, Spain, Portugal and Turkey. Germany, Italy and Japan formed an alliance and were called as the Axis power. The opponents led by Britain, France and the USA came to be known as the Allied powers. Soon after the German invasion of Poland, the Soviet Union attacked eastern Poland and occupied the territories which were earlier in the Russian Empire. In November 1939, the Soviet Union went to war against Finland, and in 1940, the Baltic states of Latvia, Estonia, and Lithuania, which had become independent after the First World War, became Republic of USSR. Conquest of Norway, Denmark, and Holland. Germany launched her invasion of Norway, Denmark on April 9, 1940, and within 3 weeks completed the conquest of these two countries. In early May began the invasion of Belgium and Holland, which was completed before the end of May. Fall of France. The German armies marched into the France, and by June 14, 1940, the capital city of Paris had fallen into German hands, almost without a fight. The war conducted by the Germans with great speed and force is known as Blitzkrieg, which means a lightning war. तो जर्मनी ने इस प्रकार से युद्ध, इतनी तेज़ी से युद्ध लड़ने लगा कि एक देश के पीछे दूसरे देश के ऊपर वो कब्ज़ा जमाने लगा, और आखिरकार उसने फ्रांस, उसका जो मेन आर्च एनिमीज था, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसके ऊपर भी उसने आखिरकार अपना कब्ज़ा जमा लिया। द बैटल ऑफ ब्रिटेन. द जर्मन एयरफोर्स बिगैन bombing raiding of Britain in August 1940 with the aim of terrorizing her into surrender. The Royal Air Force of Britain conducted an aerial raids on German territories in retaliation. The Battle of Stalingrad. In June 1941, Hitler betrayed his agreement with Stalin and invaded Soviet Union. In August 1942, Hitler targeted Stalingrad, an industrial city. In November, the Soviets were able to counter-attack with fresh troops. The Germans suffered from frigid temperatures and unable to get fresh supplies. The starving Germans finally surrendered. तो बैटल ऑफ ब्रिटेन, जर्मनी ब्रिटेन के ऊपर रोज़ जाके कुछ ना कुछ बॉम्ब ड्रॉप करता था, रोज़ कुछ ना कुछ प्लेन से बॉम्ब गिरा देता था, ये उम्मीद में कि ब्रिटेन अपने आप को सरेंडर कर दे। लेकिन ब्रिटेन भी कुछ कम नहीं था, ब्रिटेन ने भी जर्मनी के ऊपर रोज़ हमला करता था, काउंटर अटैक करता था। फिर हिटलर ने जो पैक्ट किया था, जो ट्रीटी बनाई थी रशिया के साथ में, उसने इसको तोड़ दिया 1941 में, और जाके उसने रशिया के ऊपर हमला बोल दिया। स्टेलिनग्राड ये एक इंडस्ट्रियल शहर था, तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने पहले से भाप लिया था, तो रशिया ने स्टेलिनग्राड पहले से खाली कर लिया था और अपने पूरे राशन को जला दिया, पूरा फ्यूल पेट्रोल सब कुछ ख़त्म कर दिया। और जब हिटलर की आर्मी वहाँ पर आई तो एक तो ऊपर से सर्दी थी, यानी बर्फ़ गिरने वाली सर्दी थी, और खाने पीने के लिए कुछ नहीं, राशन कुछ नहीं, पेट्रोल कुछ नहीं। तो इस वजह से हिटलर की जो आर्मी थी वो हिम्मत और हौसला हार गई थी। द बैटल ऑफ बर्लिन. It began in April 1943. 1945. The Germans were caught between the British and the Americans on one side and the Russians on the other. When the Allied forces closed in on Berlin itself, Hitler committed suicide on May 7, 1945. The last of the German army surrendered. May 8 was a day of celebration and victory for Europe. तो बैटल ऑफ बर्लिन फाइनली रशिया ने बाजी पलटा दी, हिटलर अब हारना चालू किया। फिर इंग्लैंड ने भी अपना जोर लगा लिया, यूएसए भी वॉर में उतर आया, और यूएसए और इंग्लैंड एक तरफ से हमला कर रहे थे, दूसरी तरफ से रशिया हमला कर रहा था। और हिटलर जब उसको पता लगा कि हम हारने वाले, उसने आखिरकार आत्महत्या कर ली, और इससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया।